Hi everyone, good evening. Good evening Manas, good evening Shivang. Hi Rugvir. आप लोग ये question try करो. In the meantime, I'll just do some small bit of setup from my side. ठीक है? Hi Pratmesh, hi Sanika. All right. ठीक है. I think most of the students have joined in now. हाँ. So last class में हम लोगों ने radial as well as angular wave functions का एनालिसिस या आई शुड से इंटरप्रिटेशन देखा था, सीखा था. उसके ऊपर बेस्ड आई हैव गिवन यू दीस टू क्वेश्चंस. नाउ पहले क्वेश्चन का आंसर इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. दैट नोड कहां पर होगा? साइज 0 होगा. एंड साइज 0 का मतलब क्या होगा? दैट दिस पार्ट इज द ओनली पार्ट दैट कैन बिकम 0. बाकी ये कांस्टेंट और एक्सपोनेंशियल पार्ट तो 0 नहीं हो सकते हैं, राइट? So this means 2 by r by a naught is 0. That means r is equal to 2 a naught. ठीक है? So this r naught is equal to 2 a naught is the relationship. ठीक है? This is your answer. तो ये काफी सिंपल सा था. सेकेंड वाला ट्राई करो. दिस इज समथिंग जिसका रेडियल कंपोनेंट आपको दिया है. And you have to work on the 3 sub questions within this.
Anyone who is able to identify the orbital? Right, Yash. शिवांग, गुरुदेव सही है। नहीं, मानस आपका गड़बड़ हो गया। नहीं सुमित। इनकरेक्ट रवि। नहीं सानिका, आपका भी गड़बड़ हो गया। हाँ, केदार आपका सही है। हर्ष आपका सही है। इसमें देखो ना, दिस इज द की पार्ट दैट यू हैव टू फोकस ऑन, द पॉलिनोमियल पार्ट। ठीक है। नाउ इन दिस पार्ट you can see that it's a quadratic, so number of non-zero roots is actually 2, which should be equal to n minus l minus 1. And what is the lowest power of r that you can see here? ये r square का टर्म है, ये r की पावर 1 का टर्म है, and ये r की पावर 0 का टर्म है. So the lowest power is 0, right? So looking at that, you get the answer that n is equal to 3 and l is equal to 0. That means it's a 3s orbital. ठीक है। अच्छा, क्या 3s ऑर्बिटल में एंगुलर नोड होते हैं? The answer is none. There are no angular nodes. Number of radial nodes? The answer is 2. What will be the shape of these radial nodes? They are spherical in nature, spherical surface only. ठीक है। And what would be the location of these nodes? The distance from the nucleus. ये आपको क्वाड्रेटिक के रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है। So solve for the roots of polynomial in R. राइट, क्या पॉलिनोमियल है आप यहाँ पे नोटिस करोगे? 3 minus what you can do is you can call zr by a naught as x. ठीक है, zr by a naught को x कह दो, तो 3 minus 2x plus 2 by 9 x square is 0, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, where x is equal to zr by a naught. ठीक है, and this makes for 2x square minus 18x plus 27 is equal to 0. तो x का वैल्यूज क्या क्या रहेगा यहाँ पर? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 326 होगा ना, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a, 324, हाँ माय बैड, 18 इंटू 18, हाँ 324। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा, and then you will be able to get the value of r as well. ठीक है, समझ में आया?
ठीक है, so this was a quick recap of what we did in the last class as part of analysis of these wave functions. Okay. Now, in continuation with that only, ठीक है, यहाँ पर observe करना. Let me cover the next topic, which will be, you can say that are graphs of radial wave function. Okay. In fact, before getting into the details of these graphs, let me give you a context behind understanding these graphs. So if you remember our introduction to quantum mechanical model of atom, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था that amplitude of the wave function is related to the probability of finding of electron, right? So यहाँ पर notice करना that psi हमने जो लिखा था, ठीक है, psi क्या imply कर रहा था? That was amplitude of the wave function and if you substitute the particular value of r, theta or phi, ठीक है, राइट, यहाँ पर ये आपने ऐसे r, theta and phi के टर्म्स में लिखा हुआ था. So it gave you, when you substitute the value of r, theta and phi into the wave equation, it gives you the amplitude of the wave at those particular coordinates of r, theta and phi. ठीक है. Now, when you do a square of this, we discussed that as per Max Born, the square of this amplitude is directly proportional to the probability of finding electron. In fact, this term psi square was called as probability density. ठीक है, what does probability density mean? ये भी मैंने आपको उस टाइम पे समझाया था that it meant probability of finding electron per unit volume. So it's a probability of finding an electron in a region divided by the volume of the region. Now, notice करना this understanding of total wave function, which was in terms of r, theta and phi, we were able to break it down into two components, radial component and angular component. ठीक है. So यहाँ पर our focus, ठीक है, यहाँ पर देखना, with focus on radial part, ठीक है, with focus on radial wave function, we can
determine the radial probability of finding electron. Okay, something which depends only on r, that is the distance from the nucleus, and not on theta and phi. The total probability will be a multiplication of radial probability multiplied by angular probability. However, in this particular subtopic, I am going to focus on the radial probability part. तो यहां पर आप नोटिस करना, thus सिर्फ रेडियल पार्ट का वेव फंक्शन मैंने लिया और उसका स्क्वायर करा, तो दिस वुड मीन radial probability of finding electron per unit volume. Okay, this is what will be the radial probability density V. Now, in the context of radial probability, we can quite easily visualize the unit volume and what it would be. ठीक है, सो एक बार मैं आपको वापस से थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूं. ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना. सो एज अ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, टुवर्ड्स डिटरमाइनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होते, ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पे नोट मत करना, ठीक है, डोंट नोट दिस डाउन, ये जस्ट मैं एक अलग से एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको लिखवा रहा हूँ. हम लोग अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होते, एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वी वर टू डिस्क्राइब द वेव फंक्शन, ठीक है, देन psi would give you the amplitude of the wave function at the given coordinates x, y and z, एंड आप इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये आपको क्या देता? दिस वुड गिव यू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. ठीक है, एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, नाउ नोटिस करना, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम what is meant by unit volume? So what it would mean, nucleus at the origin, and a unit volume can be described as a cuboid volume of dimensions dx, dy and dz. ठीक है, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? dx into dy into dz. So if I have to calculate the probability, ठीक है, if I have to calculate the probability, what I'll do is I'll multiply psi square with the volume, the unit volume, that is dx, dy, dz, and calculate the probability. But this will not be actually a multiplication. This will actually be a triple integral
for x, y, and z. And this will give you the probability of finding an electron in a region around the nucleus. ठीक है, अब ऐसा क्यूबॉइड क्यों लिया? बिकॉज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस के बेसिस पर डिफाइन करते हैं, एंड दिस बिकम्स अ कन्वीनियंट यूनिट वॉल्यूम टू वर्क विद. ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है, अगर हम रेडियल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क कर रहे होंगे, ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क कर रहे होंगे, तो साई स्क्वायर का इंटीग्रल we will have to work with to determine the probability of finding an electron, and this will give you the total probability. ठीक है, now the thing is that this is something which is quite difficult, and that is why as part of our syllabus, as part of our understanding right now, what we have found or what we have kept within syllabus is only focus on the radial wave function. ठीक है, on the radial part of the wave function, and उसी का एक सेट ऑफ एनालिसिस. ठीक है, सो यहां पर आप ऑब्जर्व करना that if I think about the radial wave function only and try to understand the radial probability. Radial probability मतलब the probability of finding an electron at a particular distance r from the nucleus, irrespective of the angle. ठीक है, so in that case the unit volume comes out to be or can be treated as, यहां पर ऑब्जर्व करना, at a distance r from the nucleus you can take the volume of a thin shell of thickness dr. Let me draw it थोड़ा सा बड़ा. So you have x coordinate, y coordinate, z coordinate, nucleus, nucleus से r distance पर, ठीक है, at an r distance from the nucleus, यहाँ पर ऑब्जर्व करना r distance पर dr thickness का region. This is a unit volume you can describe in the radial context. So this unit volume, ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग dV बोलेंगे. So there are two ways in which you can write this: 4/3 pi r plus dr का cube minus 4/3 pi r cube. ठीक है, so this dV
will be the volume of a thin shell at a distance r from the nucleus, and ये outer sphere minus inner sphere का volume will give you the volume of this shell inside. इसको जब आप open up करोगे तो it will reduce to 4 pi r square dr. ठीक है. Why will it reduce to 4 pi r square dr? Because dr will be much less than r. Okay, you can also think of it as surface area into the thickness. Surface area कितना होगा 4 pi r square और thickness कितनी होगी dr. ठीक है. So psi square, which was the radial probability density, ठीक है, psi square, that is the radial probability density. How do we describe it? Radial probability of finding electron per unit volume. ठीक है. So I will rewrite that psi square r, this is the radial probability of finding an electron at a distance r from the nucleus upon unit volume. ठीक है, at a distance r from nucleus. So if I take this as 4 pi r square dr, ठीक है, and substitute this over here, then you can see that the radial probability of finding electron can be written as psi square r into 4 pi r square dr का integral. ठीक है. Now this is something which comes out as a result of the radial wave function, and that is why we are calling it as the radial probability. ठीक है. इसी तरीके से एंगुलर प्रोबेबिलिटी का भी डिस्कशन होता है, and a multiplication of radial probability and angular probability is what gives the total probability of finding the electron around the nucleus. However, as I said that angular part थोड़ा difficult रहेगा. Our focus primarily will be on the radial part. ठीक है. इसको आप इंटरप्रेट कैसे करना है और यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना. ठीक है. लिमिट्स आप डालोगे इस इंटीग्रेशन की, so that will actually help you understand better this particular result. Okay, so if you have say psi square r
इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, 0 से r आप लिमिट डालोगे इसका, तो व्हाट विल इट गिव यू? इट विल गिव यू रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन अ shell between, in a spherical shell between r equal to 0 and r, ठीक है. So it will give you the radial probability of finding an electron in a spherical region of volume or in a sphere of radius r. I should say in a just a sphere of radius r, ठीक है. If you put any general limits, say r1 to r2, then what it will do and give you as a result is the radial probability of finding electron in a spherical region between r1 and r2, ठीक है. सो यहाँ पर ये r1 है एंड ये r2 है, ठीक है. So if you put the limits r1 to r2, then it will give you the probability of finding an electron between r1 and r2, ठीक है. If you, ठीक है, would have done the integration from 0 to infinity, what would have been the answer? Any guesswork? If I would have done the integration from 0 to infinity, it would have given me the radial probability of finding an electron from 0 to infinity. कहीं ना कहीं तो होगा ही सही ना, 0 से infinity के बीच में, उसका probability तो 1 ही होगा, right? So this is as good as saying the electron is likely to be found from nucleus to infinity. What is the probability of it? 1. ये समझ में आया? All right. Now let me take a quick recap. ठीक है, एक साथ काफी सारा इंफॉर्मेशन हो गया to absorb. The objective with which I started this particular subtopic, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना. The objective was that sir, आपने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का जब स्टार्ट किया था तब आपने हमें बोला था that we have discarded the concept of orbit and now we are introducing the concept of orbital, and this concept of orbital is based on the concept of probability, the probability of finding an electron. So by doing some math, okay, by doing some math, what we are able to do is we are able to find regions around the nucleus in which electron is likely to be found, and we call those regions as orbitals. And without getting into any mathematical details, we started understanding these different orbitals, ठीक है. तो अब in this particular subtopic, I am trying to give some context, some background
towards how this probability of finding electron is determined. And वो context किस तरीके से है? That Schrodinger gave his wave equations and said that if you have to describe the electron around the nucleus, these wave equations are your solutions. Then Max Born came and said, ठीक है, ये तो आपने बताया that okay, if you have to describe electron as a wave, then these are the wave equations we can think of, visualize of. But what about the particle nature of electron? If I have to talk about that electron kahan par present hoga around the nucleus, how do I work with it? And that is where Max Born said that the particle nature is actually related to the wave nature. And through his mathematical analysis, he came up with this understanding that psi square, amplitude ka square, is directly proportional to the probability of finding electron. And that psi square is actually something which is called as probability density, which is probability per unit volume. तो अगर आपको probability निकालनी है तो आप psi square को volume से multiply कर दो, तो you will be able to get the probability of finding an electron. Now, what is this volume that we are talking about? So इसमें मैंने आपको context दिया that अगर आप Cartesian coordinate system में work कर रहे होते, ठीक है, so this volume would have been dx dy dz. This is the unit volume of the cuboid that would be there. ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से at a random coordinate x, y, z. ठीक है, if I have to describe a volume, then that volume will be of a cuboid of dimensions dx, dy and dz. So if I have to determine the probability of finding an electron in this region, then I will have to multiply psi square with the volume of this region. So I will multiply psi square with dx, dy and dz and do the calculation. Okay, now that calculation is actually not a multiplication, it is actually an integration. Okay, so it is in fact a triple integral in terms of x, y and z. Okay, so if you will do an integration from 0 to x, 0 to y and 0 to z, so you will get the volume or so you will get the probability of finding an electron in a cuboid of dimensions x, y and z. कि इस cuboid में इलेक्ट्रॉन के मिलने का probability क्या रहेगा, इसके dimensions क्या होंगे, x, y and z. ठीक है. Now this is something which is in Cartesian coordinate system quite difficult to work with and solve for, and this is where the polar coordinate system becomes much easier to work with. ठीक है, इसीलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्चुअली श्रोडिंगर इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करा ही नहीं जाता. इट इज क्वाइट डिफिकल्ट मैथ. सो व्हाट दे डिड वाज दैट दिस विल बी क्वाइट टीडियस, सो दे एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड द श्रोडिंगर इक्वेशन फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम r, थीटा एंड फाई, एंड इसमें नेचुरली what we found out that the radial and the angular part separated. ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेपरेट नहीं हो रहे थे, x, y and z were not coming out to be separate, but यहाँ पर रेडियल एंड एंगुलर पार्ट अलग अलग हो गए. ठीक है, अब आप रेडियल पार्ट को अलग से एनालाइज कर सकते हो, एंगुलर पार्ट को अलग से एनालाइज कर सकते हो, एंड देन यू कैन प्रेजेंट द फाइनल एनालिसिस
by combining both these radial and angular analysis together. ठीक है. Now what I am doing here right now is that focusing on the radial part only. Angular part क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैंने कहा एंगुलर पार्ट पे अभी फोकस नहीं कर रहा है. ठीक है, हमारे सिलेबस के हिसाब से, ठीक है, जेईई 2016 में रेडियल पार्ट पे क्वेश्चन आया था एक. ठीक है, एनसीईआरटी भी आप खोल के देखोगे तो एनसीईआरटी में भी रेडियल पार्ट के ऊपर ही फोकस किया हुआ है. ठीक है, क्योंकि एंगुलर पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. इट इज नॉट समथिंग विच इज क्वाइट इजी एट योर लेवल टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड. सो वी फोकस ऑन द रेडियल पार्ट. तो फिर हमने कहा चलो स्टार्ट करते हैं. सो रेडियल पार्ट से क्या समझ में आएगा, दैट साई आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, साई आर वुड रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द रेडियल वेव फंक्शन. ठीक है, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे क्या रिप्रेजेंट करके देगा, साई स्क्वायर आर. इट विल गिव मी द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. Now what is radial probability density? It is the radial probability of finding an electron per unit volume. Now how do I think of this unit volume in the radial context? So that unit volume, ठीक है, in radial context is the volume of a thin shell at a distance r from the nucleus. जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या था, it was the volume, the unit volume was of a cuboid, dx dy dz at a coordinate x comma y comma z from the nucleus. वैसे ही unit volume in the radial coordinate system, ठीक है, in the polar or spherical coordinate system I should say, ठीक है, this is in spherical coordinate system, is the volume of a thin shell at a distance r from the nucleus. So ये dv will be outer sphere minus inner sphere का volume. ठीक है, एंड आप ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाना, एंड देन जो भी dr स्क्वायर dr क्यूब वाले टर्म रहेंगे उनको नेग्लेक्ट कर देना. ठीक है, क्योंकि dr वैसे ही बहुत छोटा है, तो dr स्क्वायर तो और छोटा आएगा, dr क्यूब और छोटा आएगा, उनको आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद इज 4 pi r square into dr, which can also be thought of as surface area into the thickness. So this is what then I used here. But okay, अच्छा एक मिनट. तो यहाँ पर ठीक है, लक्ष्मी का डाउट आया है दैट dr भी तो छोटा है तो उसको भी आप हटा दो. ठीक है, द थिंग इज दैट यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, when we are neglecting something, we are neglecting it in addition or subtraction. जैसे अगर आप इसको खोलोगे, ठीक है, ये a प्लस बी क्यूब का कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है, a माइनस बी होता है, प्लस होता है ना. हाँ, तो दिस माइनस 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, तो अब ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये वाला और ये वाला तो कट गया पूरा. ठीक है, क्या बचेगा आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना, 4/3 पाई, ठीक है, डी आर क्यूब प्लस 3r स्क्वायर डी आर प्लस 3r इंटू डी आर स्क्वायर. ठीक है, ये बचेगा. तो अब इसमें नोटिस करना, इस टर्म के कंपैरिजन में ये दोनों टर्म को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं. ठीक है, द नेग्लेक्शन पार्ट हैपेंस इन रिलेटिव टू ईच अदर.
मुझे डेफिनेटली पता है ये छोटा है, ठीक है, मतलब समथिंग इज स्मॉल, मुझसे पूछा जा रहा है कितना स्मॉल, 0.01, 0.001, 0.00001, तो समथिंग इज स्मॉल, वो मुझे पता है दैट ये थिन शेल का वॉल्यूम है, वो तो स्मॉल ही आने वाला है, तो मैं उसको जीरो नहीं बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे निग्लेक्ट कर रहा हूं उसके रिलेटिव में क्या चीजें नेग्लेक्ट हो सकती है, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी अराइव एट 4 pi r square dr, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस थिन शेल, ठीक है, डेफिनेटली छोटा होगा, बट दिस विल बी द बेस्ट वे टू represent it. So that I used here, that psi square r is the radial probability upon unit volume, and if I multiply this unit volume with psi square r, I will get the radial probability of finding the electron, ठीक है। Now depending upon how I do the integration from what limit to what limit, I will be able to find the probability, the radial probability of finding an electron. So if I take the limits from 0 to r, it will be the radial probability of finding an electron in a sphere of radius r. If I take from r1 to r2, then it will be the radial probability of finding electron in a spherical region between r1 and r2, ठीक है, and this is how you get the radial probability, ठीक है। In fact, अगर मैं 1s ऑर्बिटल के लिए कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, वैसे तो ये इंटीग्रेशन आपको करना आता नहीं है, ठीक है, बट मैं बता देता हूं, अगर मान लो 1s के लिए मैं कर रहा होता एंड psi square r into 4 pi r square dr, एंड मैं बोलता था प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन शुड बी 90%, ठीक है, 0.9, तो वो किस r पे जाके होगी, ठीक है, और इससे मैं r सॉल्व करता, तो दैट इज व्हाट इज माय बाउंड्री सरफेस डायग्राम। ये जो बाउंड्री सरफेस में जहां पे बनाता हूँ ना 1s ऑर्बिटल के डायग्राम में, वो r कैसे कैलकुलेट होता है, वो इस इंटीग्रल की वैल्यू को 0.9 पुट करते हैं एंड देन दिस सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ r एंड कम अप विद दिस एज द आंसर, दैट इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% होगी, ठीक है। अब क्योंकि ये इंटीग्रेशन अपने बस का नहीं है, ठीक है, आप लोगों ने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, इसलिए आपसे इंटीग्रेशन करवाया नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट क्लास, ठीक है, मैंने आपको ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शंस दिए थे, ये नहीं सर, ये वाला, ठीक है, अगर मैं ये उठाऊं, ठीक है, इनफैक्ट क्योंकि इसमें एंगुलर पार्ट भी नहीं है, ठीक है, 1s ऑर्बिटल का, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना फॉर 1s ऑर्बिटल, ठीक है, थीटा एंड फाई का टर्म नहीं है, तो इसका तो एक्चुअली मैं टोटल प्रोबेबिलिटी भी बता सकता हूँ आपको, ठीक है। साई ऑफ 1s क्या हो जाएगा, रेडियल पार्ट इनटू द एंगुलर पार्ट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, 2 इंटू 1/4 पाई की पावर 1/2 एंड z बाय a नॉट की पावर 3/2 इंटू e की पावर माइनस सिग्मा, सिग्मा क्या होता था, सिग्मा वाज, क्या था सिग्मा, 2zr by na नॉट, सो 2zr by n यहाँ पे 1s ऑर्बिटल है तो n का वैल्यू बन रहेगा a नॉट एंड सिग्मा बाय 2,
ठीक है, तो ये साई रहेगा मेरा, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पर ऑब्जर्व करना, साई स्क्वायर इंटू 4 पाई r² dr क्या रहेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो इस सबको स्क्वायर कर दो, तो 2 × 1/4 पाई इंटू z/a0 का क्यूब इंटू e⁻²ZR/a0, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, इंटू 4 पाई r² dr. Now if I do this as the integral, ठीक है, I'll get the probability of finding an electron. अब the thing is कि आपको ये वाला इंटीग्रल नहीं आता है, मतलब ये सब तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 × 1/4 पाई इंटू z/a0 का क्यूब, ये सब बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, बट अच्छा ये 4 पाई भी बाहर बचेगा, तो ये 4 पाई को कैंसिल कर दो, चलो, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, e⁻²ZR/a0 इंटू r² dr, ठीक है। अब आपने e⁻−ax इंटू x² dx का इंटीग्रल नहीं पढ़ा होगा, मतलब आपने e⁻x dx का इंटीग्रल पढ़ा होगा, आपने x² dx का इंटीग्रल पढ़ा होगा, बट ये इंटीग्रल आपको नहीं आता है सॉल्व करना, एंड दिस इज नॉट एक्चुअली दिस इज नॉट एन इजी इंटीग्रल टू सॉल्व फॉर, ठीक है। सो दिस इज नॉट समथिंग which is a normal integral which you can work with. These are certain special integrals जिनका indefinite integral तो वैसे भी निकाला जा सकता, इनका definite integral ही निकाला जा सकता है with certain limits kept, and वो आपको अभी नहीं निकालना आता है, तो आपसे probability निकालना कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। बट किस तरीके से probability निकाली जाती है वो मैंने आपको एक कॉन्टेक्स्ट दिया है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अब जो सिलेबस के काम का है, ठीक है, उसमें आते हैं, तो यहां पर आप ऑब्जर्व करना दैट ग्राफ्स ऑफ रेडियल वेव फंक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वो ग्राफ्स ऑफ रेडियल वेव फंक्शंस क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, यहां पर आप ऑब्जर्व करना। इनफैक्ट लेट मी पुट दिस एज अ हेडिंग देयर, क्योंकि यहां पर let me put the heading probability of finding electron, and let me put this heading here over here, the graphs of radial wave function. तो यहाँ पे आप नोटिस करना, आपसे 3 ग्राफ्स ड्रॉ करवाए जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए। एक ग्राफ ड्रॉ करवाया जाएगा साई वर्सेस आर, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। अब मैंने ऐसे वेव फंक्शन यहाँ पे इट इज ऑल रेडियल वेव फंक्शन होंगी, मैं बार बार रेडियल वर्ड यूज करना चाहूंगा, मैं कई बार भूल जाता हूँ। सो एम्पलीट्यूड ऑफ रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस आर, ठीक है। साई स्क्वायर आर क्या रहेगा, साई स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ भी आपको ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर, ठीक है। एंड एक तीसरा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए करा जाएगा विच विल बी साई स्क्वायर आर
into 4 pi r square versus r. This is called as the radial probability distribution curve और डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ यू कैन से. इस ग्राफ का जो एरिया रहेगा, ठीक है, y एक्सिस पर साई स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर प्लॉट करना है सिर्फ, ठीक है, एंड x एक्सिस पे r, ठीक है. तो इसका अंदर का एरिया जो होगा, एरिया क्या होता है, इंटीग्रल y dx, ठीक है. ये आपने पढ़ा होगा ना इंटीग्रेशन में, दैट एरिया अंडर द ग्राफ इज इंटीग्रल y dx. तो दिस विल बी साई स्क्वायर r इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये आपका y हो गया, एंड dx क्या होगा, dx विल बी dr. सो द एरिया अंडर दिस ग्राफ विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है. जो तीसरा वाला ग्राफ रहेगा, इसका एरिया, राइट, एरिया अंडर ग्राफ will give you the probability of finding electron in case of this third graph, that is the radial probability distribution graph. Acha, now the thing is that when you will look at the booklet, तो different orbitals के ये different graphs बनाए जा रहे हैं. एंड ये कहाँ से बनाए जा रहे हैं, कैसे बनाए जा रहे हैं? ये बनाए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज इक्वेशंस. ये सब फंक्शंस हैं, 1s 2s 2p, ये सब उनके फंक्शंस हैं, और इन फंक्शंस को प्लॉट कर दिया, ठीक है. डिफरेंट जगह पर r का वैल्यू डाला, उससे आपको ये एम्पलीट्यूड का वैल्यू मिल गया, एंड आपने उसको प्लॉट करना शुरू कर दिया, ठीक है. एंड ये डिफरेंट वैल्यूज आपको प्लॉट करके ग्राफ्स मिल जाएंगे. नाउ द थिंग इज दैट आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा दैट यू लर्न द पैटर्न हियर. जैसे आपने यहां पर नोटिस किया था कि व्हेन वी वर राइटिंग दीज वेव फंक्शंस, देयर इज अ पैटर्न हियर, ठीक है. एंड दैट पैटर्न इज समथिंग दैट हेल्प्स अस टू एक्स्ट्रापोलेट आवर अंडरस्टैंडिंग. जैसे हम लोगों ने ये पैटर्न को एनालाइज करके ये बताया कि रेडियल वेव फंक्शन अगर मिल जाएगा तो हम n एंड l ऑफ ऑर्बिटल निकाल सकते हैं. वैसे ही ये जो ग्राफ्स बनते हैं रेडियल वेव फंक्शन के, ये ग्राफ्स भी एक काइंड ऑफ पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है. एंड इफ यू टेक दैट पैटर्न and understand that pattern, then you should be able to draw these three graphs for any given orbital, ठीक है. तो वो पैटर्न क्या रहेगा वो आप यहां पर नोटिस करना. सबसे पहला हम लोग साई आर वर्सेस आर के ग्राफ का पैटर्न फोकस करेंगे. साई आर वर्सेस आर का ग्राफ जो पहला वाला ग्राफ है, इसमें नोटिस करना, इट विल स्टार्ट with a non-zero value for s orbitals, whereas it will start with 0, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, for p d f and all the subsequent orbitals. ऐसा क्यों?
अगेन आप नोटिस करना, द आंसर लाइज इन दीज फंक्शंस ओनली। ठीक है, यहां पर आप नोटिस करना, अगर मैं सिग्मा का वैल्यू 0 रख देता हूं तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, एंड दिस वैल्यू विल बी अ कांस्टेंट। तो मेरा वेव फंक्शन क्या हुआ, सम कांस्टेंट वैल्यू, समथिंग नॉन जीरो। बट वहीं पर अगर आप 2p में देखोगे, 2p में यहां पर आप देख रहे हो ये सिग्मा वाला टर्म नोटिस कर रहे हो, तो r इक्वल टू 0 पर ये सिग्मा 0 होगा, और उससे क्या हो जाएगा, ये जो मेरा रेडियल वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड आएगा ये 0 आएगा, तो मेरा ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, 3s में आप देखो, 3s में ये s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में आप सिग्मा 0 पुट कर दो, सिग्मा इसमें 0 पुट कर दो, मतलब r इक्वल टू 0 पे आपको देखना है क्या होगा, r इक्वल टू 0 पर आप नोटिस करोगे दैट e की पावर 0 विल बी 1, whereas 6 minus 0 plus 0, तो ये 6 रह जाएगा। ठीक है, 0 नहीं होगा, 6 रह जाएगा, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट, सो दिस विल बी समथिंग नॉन जीरो। ठीक है, बट यहीं पे अगर आप लेट्स से 3d ऑर्बिटल देख रहे हो, 3d ऑर्बिटल में ये सिग्मा स्क्वायर है, राइट, r इक्वल टू 0 पर सिग्मा 0 होगा, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरी चीज ही 0 हो जाएगी। सो यू केम टू अ कंक्लूजन दैट psi r वर्सेस r का ग्राफ, ठीक है, इट स्टार्ट्स विद अ नॉन जीरो वैल्यू फॉर s ऑर्बिटल एंड अ जीरो वैल्यू फॉर p d एंड f ऑर्बिटल। ठीक है, देन नोटिस करना दैट ये जो psi r वर्सेस r का ग्राफ है, ठीक है, फार फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, सो इट विल अप्रोच जीरो फॉर r अप्रोचिंग इंफिनिटी। ठीक है, क्योंकि आप नोटिस करोगे वापस से इन सब वेव फंक्शंस में, यू विल नोटिस सब वेव फंक्शन में e की पावर माइनस सिग्मा बाय 2 दिख रहा है, सब में e की पावर माइनस सिग्मा बाय 2, e की पावर माइनस सिग्मा बाय 2, सब में। तो अगर r इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो e की पावर माइनस इंफिनिटी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। सो फार फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ये ग्राफ्स जीरो को अप्रोच करेंगे। ठीक है, नाउ also one thing to notice here would be that these graphs जो psi r versus r के ग्राफ्स रहेंगे, they will change sign। ठीक है, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है अक्रॉस रेडियल नोड्स। ठीक है, रेडियल नोड पर क्या हो जाएगा, रेडियल नोड पर psi r 0 होगा ना, तो उसके पहले एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होगा, देन 0 होके फिर नेगेटिव हो जाएगा, या फिर नेगेटिव होगा तो रेडियल नोड पर 0 होके फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है ना, बट अक्रॉस अ नोड द एम्पलीट्यूड विल change its sign। So with these 3 points in mind, ठीक है, now let's observe the graphs of psi versus r। ठीक है, मैं वापस से इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्राफ्स ओनली। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ऑब्जर्व करना,
मैं 1s 2s 2p एंड 3s 3p 3d, ठीक है, इनके ग्राफ्स बनाता हूँ। सो ऑब्जर्व करना ऑर्बिटल, ठीक है, एक मिनट, let me psi r वर्सेस r का ग्राफ, ठीक है। In fact, let me put the radial wave function and then let me draw the graph for it. एक मिनट, ऑलराइट, सो 1s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन देखो यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए आपको क्या दिख रहा है, r equal to 0 पर it will start from some higher value only, ठीक है। एंड देन एज यू कैन सी ये क्या होगा, e की पावर, ये तो कांस्टेंट है, e की पावर माइनस आर का टर्म है, तो ये क्या होगा, जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा ये कम होता जाएगा, ठीक है। एंड एज r अप्रोचेस इंफिनिटी दिस विल बिकम और अप्रोच टुवर्ड्स जीरो। सो psi r versus r will start with a non-zero value for s orbital and then approach zero for r approaching infinity। यहाँ पर क्योंकि नोड है ही नहीं तो इसलिए थर्ड पॉइंट इतना रेलेवेंट नहीं रहा। ओके, 2s ऑर्बिटल ऑब्जर्व करना, सो 2s ऑर्बिटल नाउ यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, ये उसका रेडियल वेव फंक्शन है, ठीक है। सो इसमें भी नोटिस करना that the graph is going to start from something which is not zero, ठीक है। नॉन नेगेटिव वैल्यू से ग्राफ स्टार्ट होगा आपका, आप सिग्मा का वैल्यू जीरो रख दोगे तो ये कुछ एक वैल्यू होगी जहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक है। देन एट सिग्मा इक्वल टू 2, ठीक है, देयर इज वन रेडियल नोड, तो ये वैल्यू क्या होगा, यहां से डिक्रीज होगा बट कट करेगा, ठीक है। दिस विल बी अ पॉइंट दैट विल करस्पॉन्ड टू द रेडियल नोड, ठीक है। यहां पर आपका ये एम्पलीट्यूड अभी पॉजिटिव था, ठीक है। नाउ इट विल चेंज इट्स साइन, इट विल बिकम नेगेटिव, ठीक है। एंड फार फार अवे वापस से क्या होगा, ये जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है। इट वाज पॉजिटिव, देन इट बिकेम जीरो एंड देन फार फार अवे इट विल अगेन अप्रोच जीरो। सो ये तीनों पॉइंट का वापस से यहाँ पे यूज आया, नोटिस करना। फॉर एस ऑर्बिटल, ठीक है, इट विल बी नॉन जीरो,
it will approach 0 for r equal to infinity and changes sign across radial nodes. यहाँ पर पहले पॉजिटिव था, फिर रेडियल नोड पे नेगेटिव हुआ, साइन चेंज करा एंड देन अगेन अप्रोच r इज इक्वल टू इंफिनिटी पे अप्रोच 0. ठीक है, ना नेगेटिव क्यों हुआ? नेगेटिव क्योंकि मैथ्स है ना. 2 माइनस सिग्मा में अगर मैं सिग्मा की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, सिग्मा की वैल्यू 3 डाल दूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना. मतलब ये तो मैथ्स है, अभी नेगेटिव में कैसे समझाऊंगा. ना इसी तरीके से आप ऑब्जर्व करना. ठीक है, 2p का वेव फंक्शन ऑब्जर्व करना. 2p का अभी 2px 2p/, 2pz तीनों का रेडियल पार्ट सेम ही होता है, तो कोई सा भी एक उठा लो. तो ये 2p का वेव फंक्शन है आपके सामने. नाउ एज यू कैन सी इसका ग्राफ कैसा रहेगा. फर्स्ट पॉइंट, it starts with 0 and why it will start with 0 you can notice this sigma. r equal to 0 पर ये 0 करके ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट करवाएगा. ठीक है, देन यहां पर देर आर नो नोड्स, नो रेडियल नोड्स. ठीक है, एंड फार फार अवे, ठीक है, द ग्राफ विल बी अप्रोचिंग 0 ओनली. ठीक है, तो अगर आप इसको प्लॉट करोगे, ठीक है, ये कैसा ग्राफ हो गया, y इज प्रोपोर्शनल टू x इंटू ई की पावर माइनस एक्स. इस ग्राफ को आप प्लॉट करोगे तो कैसा होगा, स्टार्टिंग में x बढ़ेगा, y बढ़ेगा, ये वाला टर्म बढ़ता जाएगा जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा और ये वाला टर्म घटता जाएगा. तो स्टार्टिंग में ग्राफ इंक्रीज करेगा एंड फिर डिक्रीज करेगा. ये स्टार्ट में डोमिनेट करता है, फिर एंड में ये डोमिनेट करता है. ठीक है, वो आप चाहिए तो आप डेटा लेकर प्लॉट करके देख लो. दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट विल कम. इसमें कोई रेडियल नोड नहीं रहेगा. ठीक है, देन 3s का ग्राफ ऑब्जर्व करना. 3s का ग्राफ कैसा रहेगा. अब 3s के ग्राफ में मैं चलो वेव इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बट मुझे पैटर्न समझ में आने लग गया है, तो मैं पैटर्न से ही आपको ड्रॉ करके बताता हूँ. ठीक है, क्या क्या पैटर्न समझ में आया मुझे. पहली चीज, एस ऑर्बिटल मतलब ग्राफ ऊपर से कहीं से स्टार्ट होगा. ठीक है, ग्राफ ऊपर से कहीं से स्टार्ट होगा. फिर 3s के अंदर कितने रेडियल नोड्स होते हैं, 2 रेडियल नोड्स विल बी देयर. तो ग्राफ दो बार साइन बदलेगा. अभी पॉजिटिव से स्टार्ट होके एक बार नेगेटिव जाएगा, फिर नेगेटिव से वापस पॉजिटिव आएगा. तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ये ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव गया एंड नेगेटिव से वापस फिर पॉजिटिव आएगा एंड देन फार फार अवे इट विल अप्रोच 0. ठीक है, दिस वाज द सेकंड पॉइंट, दैट फार फार अवे इट विल अप्रोच 0. सो यहाँ पे ऑब्जर्व करना, पहला पॉइंट एस ऑर्बिटल है यानी कि ऊपर से स्टार्ट होगा. कितने रेडियल नोड्स होंगे, 2 रेडियल नोड्स होंगे, तो 2 बार साइन चेंज करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से वापस पॉजिटिव एंड देन फार फार अवे अप्रोचिंग 0. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये एम्पलीट्यूड का साइन रहेगा. ठीक है, एंड दीज आर द 2 रेडियल नोड्स. ठीक है, कहां पर होंगे रेडियल नोड्स, उसके लिए आपके सामने वेव फंक्शन है, उसको सॉल्व करो और आंसर बता दो. ठीक है, अगर ये ढूंढना है आपको कि कहां पर होंगे रेडियल नोड्स, तो समझ में आ रहा है अभी पैटर्न. ठीक है, अभी 3p का बताना, 3p में कैसा रहेगा. ठीक है, 3s के बाद में
3p में हम नोटिस करेंगे 3p में देयर विल बी वन रेडियल नोड, ठीक है, ये हमको पहले से ही पता है 3p में एक रेडियल नोड रहेगा। अच्छा, p का ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? p का ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा और एक रेडियल नोड रहेगा। ओरिजिन से स्टार्ट होगा, पहले पॉजिटिव रहेगा, फिर एक नोड के बाद में नेगेटिव होगा एंड देन इट विल अप्रोच 0, ठीक है, दिस विल बी द ग्राफ फॉर इट, ठीक है। एंड इसमें अब एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं एज एन एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज दैट द height of the graph, it keeps on decreasing as we move away from the nucleus. The amplitude basically decreases as we move away from the nucleus. यहाँ पर आप देखोगे तो ये ज्यादा हाइट है, यहाँ पर ये कम हाइट है, ठीक है। तो वो कैसे पता पड़ेगा? अब उसके लिए थोड़ा सा और डेप्थ में जाना पड़ता है, मतलब उसके लिए आपको फिर ये वेव फंक्शन प्लॉट ही करना शुरू कर दो, पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक नोट लिख दूंगा, एज वी मूव अवे, ठीक है। यहाँ पर कैसा हो रहा है? द हाइट ऑफ कर्व्स decreases, ठीक है। दिस इज समथिंग विच इज अ पैटर्न दैट इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। अच्छा, तो ये 3p का हो गया। अच्छा, अब ऑब्जर्व करना, अगर मैं आपको 3d का ड्रॉ करने के लिए बोलूंगा तो 3d में क्या रहेगा? 3d में कितने रेडियल नोड्स रहेंगे? देयर विल बी 0 रेडियल नोड्स, ठीक है। और 3d का ग्राफ कहां से स्टार्ट होना चाहिए? ओरिजिन से। तो यहां पर आप ऑब्जर्व करना उसका ग्राफ कैसा रहेगा? साई आर वर्सेस आर, ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, देयर विल बी नो नोड, फार फार अवे भी 0 होगा, तो इट विल बी जस्ट इंक्रीजिंग एंड अप्रोचिंग 0, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ रहेगा। अब चाहिए तो आप इनके, अगर आपके पास बहुत टाइम है, बहुत फुर्सत है, तो ये रहे वेव फंक्शन और डेटा डालो और प्लॉट करते जाओ, ठीक है। मैंने आपको पैटर्न समझाया है, बट if there is a lack of trust, then I would advise you to put data and plot it out, ठीक है। तो क्या आपको ये साई वर्सेस आर के ग्राफ समझ में आए? ठीक है, आपको y एक्सिस की वैल्यू नहीं नोट करनी है, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा नहीं कि हाइट कितना रहेगा, नोबडी इज गोइंग टू आस्क, ठीक है। जस्ट एक ब्रॉड आइडिया कैसा होगा इस ग्राफ का, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेट्स से इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, which orbital corresponds to this psi r versus r graph, ठीक है। एंड ये ग्राफ आपके सामने ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से, ठीक है। तो आप क्या आंसर करोगे?
राइट, आर्यन, पूर्णा, यश सबका सही है, रावी का भी सही है, केदार का भी सही है, मानस गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे देखो पहली बात ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एस ऑर्बिटल, फिर एक दो तीन रेडियल नोड्स है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4s ऑर्बिटल, 4s में तीन रेडियल नोड्स होंगे ना। ठीक है, अच्छा, नाउ अब आप नोटिस करना, आपको अगर साई वर्सेस आर ग्राफ समझ में आ गया है तो फिर साई स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ विल बी जस्ट जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना देना। ठीक है, ऑल्दो स्केल भी चेंज होगा, ठीक है, द स्केल ऑल्सो चेंजेस, बट स्केल के बारे में कोई आपसे पूछ नहीं रहा है। तो यहां पर अगर मुझे इन्हीं ग्राफ्स का साई स्क्वायर आर वर्सेस आर ग्राफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ ड्रॉ करना होगा, तो वो कैसा रहेगा, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव था वो पॉजिटिव रहेगा, जो नेगेटिव है उसका पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये पॉजिटिव ही था, तो इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, 3s का, ठीक है, हाइट कम होती जाएगी एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, इसके केस में भी ऐसा रहेगा, हाँ सॉरी, नेगेटिव में नहीं जाएगा, जो नेगेटिव था बस वो आप पॉजिटिव में आप प्लॉट कर देना। ठीक है, इसमें तो खैर ऐसा ही रह जाएगा, स्केल चेंज होगा, नेचर वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, नेगेटिव पार्ट रिमूव नहीं होगा, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के ग्राफ हो गए। ठीक है, अब लेट्स से मैं आपसे पूछूंगा एज एन एग्जांपल, विच ऑर्बिटल corresponds to this psi square r versus r graph। ठीक है, चार ऑप्शंस है आपके पास में, क्या आंसर रहेगा आपका। पहला वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, एस नहीं होगा, क्यों, बिकॉज ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। इनके बीच में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए फिर कुछ ना कुछ और इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आई कैन ओनली से इट कैन बी बी सी एज वेल एज डी।
क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो ये पी डी एफ कुछ भी ऑर्बिटल हो सकता है। एंड इसमें आप नोटिस कर रहे हो तो 3 रेडियल नोड्स हैं, विच इज द केस विद 5p 6d एंड 7f। तीनों में 3 रेडियल नोड्स होते हैं। ठीक है, तो योर आंसर वुड बी एनी ऑफ द 3। ठीक है, नाउ अब आप ऑब्जर्व करना, साई वर्सेस आर का ग्राफ आपने ऑब्जर्व करा। अब आप ऑब्जर्व करना जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वर्सेस आर। ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन फॉर ऑल ऑर्बिटल्स। ठीक है, बी इट एस पी डी एफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया ना, तो भले ही साई जीरो नहीं हो बट ये आर तो जीरो हो जाएगा ओरिजिन पे, तो नॉन जीरो इंटू जीरो विल स्टिल बी जीरो। So this graph will start from origin for all orbitals। ठीक है, बाकी सब सिमिलर रहेगा। ठीक है, बाकी आप यहीं से आप अपना नॉलेज एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, if I ask you to draw this size, the radial probability distribution curve, ठीक है, that is psi square r 4 pi r square versus r। ठीक है, यहाँ पे मैंने डी आर गड़बड़ लिख दिया, सॉरी। ठीक है, तो इन सब के लिए ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक, मैं यहाँ पर ऊपर मेंशन कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। हाँ, starts from origin for all orbitals। तो यहाँ पे आप नोटिस करना, यहाँ पे ग्राफ कैसा रहेगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, फार फार अवे, अगेन द प्रोबेबिलिटी विल बिकम जीरो। ठीक है, 2s के लिए ओरिजिन से स्टार्ट होगा, देन नोड पे प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, एंड देन इंक्रीज होके वापस से फार फार अवे इट विल बिकम जीरो। ठीक है, इसमें नोटिस करना द हाइट इंक्रीजेस। ठीक है, हाइट ऑफ curves would increase as we move away from the nucleus। ठीक है, सो 2p में कैसा रहेगा, 2p में एज इट इज ही रहेगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इंक्रीज होगा एंड फार फार अवे द प्रोबेबिलिटी विल बिकम जीरो। 3s में कैसा रहेगा, ये 3s ऑर्बिटल का ग्राफ हो गया, ओरिजिन पर जीरो। ठीक है, देन एक नोड, दूसरा नोड, एंड देन फार फार अवे इट विल बिकम जीरो। ठीक है, ये 3s ऑर्बिटल का था। ठीक है, दोबारा से ध्यान से ऑब्जर्व करना। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। 1s ऑर्बिटल के लिए, एक मिनट, 1s ऑर्बिटल के लिए
किस तरीके से दिख रहा है आपको? ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, देयर इज नो नोड, एंड एज यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस फार फार अवे, प्रोबेबिलिटी वापस जीरो हो जाएगा, तो ये इंक्रीज करेगा एंड डिक्रीज करेगा, ठीक है। एंड एज अ जस्ट एडिशनल डेटा पॉइंट, अगर कोई पूछेगा कि ये मैक्सिमा कहाँ पे आता है, सो द आंसर इज 0.529 एंगस्ट्रॉम पर, ठीक है। तो बोर्स मॉडल was not so incorrect after all, because the maxima of finding the maximum probability of finding of 1s electron comes at the value calculated by Bohr's radius, ठीक है। 2s ऑर्बिटल के लिए कैसा रहेगा? 2s ऑर्बिटल के लिए नोटिस करना, ओरिजिन पर प्रोबेबिलिटी जीरो, फार फार अवे जीरो, एंड बीच में एक नोड पर जीरो, तो कैसा होगा? जीरो इंक्रीज करेगा, फिर जीरो, फिर इंक्रीज करेगा, एंड देन अप्रोचेस जीरो, ठीक है। 3s में कैसा होगा? 3s में ओरिजिन पे जीरो, फार फार अवे जीरो, और बीच में दो नोड्स होंगे जहां पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होगा, तो इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, एक नोड आएगा, फिर से इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, एक नोड आएगा, फिर से इंक्रीज करेगा एंड देन डिक्रीज करेगा, ठीक है। एंड इसमें जस्ट एक चीज जो मैंने बताया यहाँ पर, हाइट ऑफ कर्व, जैसे साई और साई स्क्वायर के ग्राफ में हाइट ऑफ कर्व्स डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पर ये हाइट ऑफ कर्व्स इंक्रीज करता है as you move away from the nucleus, ठीक है। 2p के केस में कोई रेडियल नोड ही नहीं था, तो 2p के केस में ओरिजिन पे जीरो, फार फार पे जीरो, तो बस एक बार इंक्रीज करेगा एंड डिक्रीज करेगा, ठीक है। वैसे ही अब अगर आप 3p का ड्रॉ करना है, तो 3p में कैसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर नोटिस करना, 3p में ओरिजिन प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो, एक नोड रहेगा, एंड फार फार अवे इट विल अप्रोच जीरो, तो इंक्रीज डिक्रीज एंड देन इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है। 3d के केस में ओरिजिन पे जीरो, फार फार अवे जीरो, देयर इज नो रेडियल नोड, जस्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। इस तरीके से आपके ये ग्राफ्स रहेंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। हाँ, अब कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ, सो सत्या का डाउट है, व्हाई इज देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन द हाइट ऑफ द कर्व्स। तो सत्या, वो एक्चुअली आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करने पर ये ऐसा रिजल्ट आता है, ठीक है। एंड द थिंग इज दैट इफ यू थिंक ऑफ इट इंट्यूटिवली, तो जैसे 1s का इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास मिलेगा ना, 3s का इलेक्ट्रॉन विल बी फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो उसका जो ग्लोबल मैक्सिमा है प्रोबेबिलिटी का, दैट विल बी एट अ मच डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। हाँ हर्ष, बोलो क्या डाउट है? अनम्यूट करूं तो मैं तुम्हारा हैंड रेस करो। हाँ, एक बोलो। हाँ सर मैं वो लास्ट वाला नहीं समझ पाया सही है, सो इसमें, स्क्वायर वाला। हाँ इसमें ये जो ग्राफ है साई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर वाले, ये आपको प्रोबेबिलिटी बताते हैं, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व्स एक्चुअली गिव यू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें आपको अगर साई और साई स्क्वायर ड्रॉ करना आ गया है, तो आपके ये वाला ग्राफ भी बहुत आसान होगा। इसमें द ओनली थिंग, ठीक है, दैट यू हैव टू फोकस ऑन इज नोड्स, ठीक है। इस ग्राफ में ये जो साई स्क्वायर आर
4/r² वर्सेस r के ग्राफ से, ठीक है। इनमें आपको सिर्फ नोड्स के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा एंड फार फार अवे इट विल ऑल्सो अप्रोच 0। तो जस्ट बीच में जितने नोड होंगे उतनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दोज नोड्स, एक छोटा सा और एडिशनल पॉइंट ऑफ डिटेल यहाँ पर यही है, दैट हाइट of these curves that will form because of the nodes will be in an increasing fashion as we move away from the nucleus, ठीक है। जैसे कल को आपको मैंने बोला कि मुझे ठीक है, जैसे let's say I am giving you an example that draw the graph of, ठीक है, draw psi square r 4/r² dr or not dr, psi square 4/r² versus r graph of say 5d orbital, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ग्राफ, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा एंड फार 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 अवे भी 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। ये दो चीजें तो सभी ग्राफ में होगी, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है एंड फार 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 अवे भी मिलने की इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है। अब इसमें कितने रेडियल नोड्स रहेंगे, इसमें 2 रेडियल नोड्स रहेंगे, ठीक है। 3D में 0 होते हैं, 5D में 1 रहेगा, सॉरी 4D में 1 रहेगा एंड 5D में 2 रेडियल नोड्स रहेंगे, राइट। तो ये 2 रेडियल नोड्स कैसे आप निकालोगे, दिखाओगे यहाँ पर, एक रेडियल नोड, दूसरा रेडियल नोड एंड देन अप्रोचेस 0 फार फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इस तरीके से ये ग्राफ हो जाएगा, समझ में आया अभी? ठीक है, अच्छा यश, द ग्राफ, the height of the graph does not give you the probability, the area under the graph gives you the probability, ठीक है। हाँ, सो हाउ टू इंटरप्रेट दिस ग्राफ, यहां पर आप देखना, 0 से लेट्स से दिस r, दिस वैल्यू तक कितना प्रोबेबिलिटी रहेगा इलेक्ट्रॉन के मिलने का, ठीक है। वो मैं कैसे निकालूंगा, मैं ये इतना एरिया कैलकुलेट कर लूंगा, दैट विल गिव मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 0 to r, ठीक है। सो जैसे जैसे मैं ये रेंज बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरा प्रोबेबिलिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। आपको अगर ये पूछना है मुझे, ठीक है, कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी एट r, ठीक है, एट r, तो व्हाट आई विल से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट r will be the area of this very 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 thin stripe at r, ठीक है। समझ में आया कैसे रीड करते हैं इसको? Okay, so this was the radial probability graphs, ठीक है। I have extended the class by a good 10-15 minutes, but ठीक है, now this gives you the idea of these graphs that are also there in the booklet, that are also there, that are expected from you, कि radial probability या radial wave function के ग्राफ कैसे रहेंगे, ठीक है। Now the chapter is, yes, almost over,
एक दो छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है which I was hoping to finish today itself, but I think I'll take one more lecture, not an entire lecture maybe, but a small bit of it, and then get done with this. ठीक है? Then अच्छा, next week में हम लोग next chapter start करेंगे which will be periodic properties. ठीक है? And when we will start periodic properties chapter, we will follow a different approach than what we were doing right now. We will follow a little faster approach so as to complete that chapter, क्योंकि थोड़ा theoretical chapter है वो, ठीक है? उसमें इतने interesting points नहीं है to discuss and ऐसे patterns to elaborate नहीं है, उसमें रट्टा मारने का चीजें ज़्यादा है. So the way in which we are going to progress with that chapter is that I am going to share pre-recorded lectures of mine with you, and you will watch those videos first. ठीक है? जैसे for example lecture 1 का वीडियो आप देख के आओगे, and then within the class lecture 1 या lecture 2 दो lectures का एक साथ देख के आ जाओगे, notes बना के आओगे, and then in the class we will have a discussion over that content. ठीक है? So this will require much lesser time for completion and will be something which will make the problem solving in that particular chapter much easier. Okay? So let's try this approach next week itself. ठीक है? मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट जब भी क्लास होगी, आई थिंक मंडे को ही होगी. ठीक है? एटॉमिक स्ट्रक्चर का छोटा सा पार्ट रहेगा, वो मैं आप लोगों के साथ में कंप्लीट कर दूंगा, एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का लेक्चर या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा. एंड इन द मीन टाइम आई विल शेयर दोज रिकॉर्डिंग्स विद यू, सो इसमें यू वॉच दोज रिकॉर्डिंग्स एंड देन कम टू दैट नेक्स्ट क्लास. ठीक है? ऑल राइट, चलो, let's close in today's lecture. Thank you guys for your patience, for staying so late. All right, take care. Bye bye.